So today's topic is syllabus. Go to syllabus and see 2.7. 2.7. 2.7, yes. So where will I find the syllables? The syllabus is mentioned in the group as well. Okay, Go to the group. We have shared the syllabus with you. iPhone. Life management and preventive health. Mm-hmm. Yes, yes, yes. Sir, sorry to disturb. Can you please reshare it? I have joined the class and group today itself, today only. Okay, we have mentioned, I think we have sent the syllabus this morning. Actually, I just joined the group. I asked the mentor with whom I connected. Okay, okay, okay. हाँ, Okay, it has been shared. Thank you very much. thank you. जिन्होंने शेयर किया है, may I know? I think सर you, मैंने किया सुमन Suman ji, thank you very much. And Yogita. योगिता जी, thank you very much. इसमें Okay. 2.7 Sir, पर जाइए। अच्छा, यहाँ पर कोई ऐसा है जिनको हिंदी नहीं समझ में आती, मतलब इंग्लिश में ही बोलूँ तो चलेगा? class edit to left line. Anyone who is not comfortable in Hindi? Anyone? Okay, yes, yes, yes. I remember you, Farunisa ji. I will explain in both the languages. Thank you very much, because I must know that, okay, there are people who will understand in a different language. So, how many of you know about the pillars of health? Sir, Do pardon? you know सर didn't get your question. Come again. what What are is the pillars? What are the pillars of health? pillars of health? Yeah, pillars of health. Sir, some hints, Sir, sir. health Pillar means includes how both, it is. right? Mental and physical. So it combines the both. Overall, holistic. Sleep, Sleep, exercise, Sir, nutrition. Vata, Pitta and Kapha. Three dosa. Faizunisa ji, you said something: sleep, exercise, nutrition, and mental health. mental health. Don't you think that these three things also cover mental Social health? connection also, sir. Huh? Social connection, exercise, health, Yeah, nutrition. social connection is close to it, but there is Stress something. management. Stress management is also close to it. It's part of that fourth pillar. Mental peace. Mental peace is a good answer, but it's not the exact thing that is Sleep. mentioned. Sir, happiness. Sir, sleep, exercise, or diet? Nutrition. And the fourth one is actually self-awareness. Self-awareness. Self-aware. If you know what you have to do with yourself and the world around you, you don't feel helpless. Don't you think so? If you know what you have to do with yourself and the people around you, don't you know that you don't feel helpless? Why do we feel pain? Because there is a lot of situation where we feel helpless. If you can recall, Buddha said that ignorance is the cause of all misery. Even in the context of yoga, even in the context of health, if you don't know what you have to do with your body will be unhealthy. If you don't know what you have to do with your mind and emotions, your mind and emotions will remain unhealthy. It will be totally dependent upon external circumstances. So these four pillars of health, if you know, you will be healthy.
Now, yoga talks about all these 4 pillars of health because there is yogic diet and nutrition, isn't it? There is yogic diet and nutrition. Yes. Yes. And there is yogic psychology or Sure. yogic philosophy Yes, that sir. changes your perception. Yes. There is yogic exercise as well. Though yoga is not exercise, but what I'm trying to say is there is physical activities related to health in yoga. And yoga, what's the purpose of yoga? To make you more and more self-aware. And those who practice yoga, their sleep quality also improves. So nutrition, it covers nutrition. Adequate rest or sleep, it covers that also. Exercise needed, but what kind of exercise is needed? That is also covered by yoga. It doesn't only say that it's exercise. No, it says what actually you need to do. And your self-awareness, 4th pillar of success. If you know, according to your constitutional composition, what type of prakriti you have, and accordingly, what type of yoga, what type of nutrition and diet you have to plan for yourself, then only you can progress in life. For example, somebody who is naturally vata, and he goes to an instructor who instruct him to practice 2 hours asanas. That vata person will suffer a lot in his spine. Yes. Yes, Nikita ji. स्वास्थ्य के 4 पिलर्स है, 4 स्तंभ है, ऐसा समझे। हेल्थ के 4 पिलर्स है। अब ये हेल्थ के 4 पिलर्स क्या क्या है? सबसे पहला न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब समझिए, आपके बॉडी को जितने भी ऐसी पुष्पति नाइट टू एवरीवन प्लीज। ओके, एक सेकेंड, आई थिंक आई शुड चेक वेदर everybody is I request everyone to mute themselves. When asked, they can unmute themselves. तो जब आप इन 4 स्तंभों पर काम करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि जैसे न्यूट्रिशन की मैं बात कर रहा था कि आपने न्यूट्रिशन पर काम किया, अब आपके शरीर में जो जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरी है, जितने भी विटामिन है, मिनरल है ना, वो सब पर आपने काम किया, प्रोटीन पर काम किया, कार्ब पर काम किया, है ना। अगर मान के चलो आपके शरीर में उन चीजों की कमी हो रही है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके बॉडी के डेवलपमेंट में ओवरऑल जो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटा यूनिट क्या है, सेल, है ना। अगर एक एक सेल को जितनी एनर्जी चाहिए सरवाइव करने के लिए आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग वो नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ पर उसका असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितनी एनर्जी है नहीं, उससे ज्यादा तो हम लगा रहे हैं, इसके कारण हमारा परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज होगा। कई सारे लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसके कारण से प्रॉब्लम होती है। फिर दूसरा पैर अगर हम आते हैं तो रेस्ट, बहुत सारे लोग सही से रेस्ट ही नहीं करते। आपको पता है, अगर आपको सही से नींद ना आए तो हार्ट की प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ेगी, ब्रेन डैमेज का खतरा बहुत ज्यादा होता है। और कभी भूल कर भी किसी भी सोए हुए इंसान को अचानक से न जगाए, क्योंकि वो उतना काफी है उस इंसान के लिए ट्रॉमा में जाने के लिए, और बहुत सबकॉन्शियस लेवल पर उसको ट्रॉमा होगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। अचानक से कभी भी किसी को उठाए नहीं, दैट इज वेरी बैड। फिर ये रेस्ट जब आपके बॉडी को मिलता है, तो आपके बॉडी में जो भी डैमेज हुआ रहता है, अगर आपने न्यूट्रिशन अच्छे से लिया है, तो रेस्ट करने से वो सारा डैमेज रिकवर हो जाता है।
जितना भी आपके बॉडी में, क्योंकि बॉडी को जरूरत है फिर से रेजुविनेट होने के लिए, और ये काम करता है स्लीप, रेस्ट। ये याद रखिएगा, मैं यहाँ पर रेस्ट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग सोते तो हैं, रेस्ट नहीं कर पाते हैं, उनको रेस्ट मिलता नहीं है। इसलिए मैं स्लीप से ज्यादा एडिक्वेट रेस्ट को यूज करता हूँ, कि जितना जरूरी है क्या आप उतना ले पा रहे हैं। क्योंकि कफ वालों को, जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं ना, उनको ज्यादा सोने की जरूरत पड़ती है, उनका नेचर ही वैसा होता है। वात वाले कम सोते हैं, उनका कम में ही हो जाता है। सर ये एक बार पित्त वाले, एक्सप्लेन कर दो कि कफ वाले कैसे जाने और वात प्रकृति कैसे पता लगेगा अपना शरीर के बारे में। वात पित्त कफ के लिए तो आपको या तो कोई थेरेपिस्ट, योगा थेरेपिस्ट के पास जाइए, या फिर आप किसी आयुर्वेदा डॉक्टर के पास जाइए, वैद्य के पास, वो आपको बता देंगे। मैं भी करता हूँ, लेकिन वो तब जब मैं अपने पर्सनल डायग्नोसिस करता हूँ, और वो फिजिकली लोग आप प्रेजेंट रहते तभी मैं वो कर पाता हूँ। वैसे और भी तरीके हैं, लेकिन आपकी क्लास में अभी हम आयुर्वेदा पर बात नहीं करेंगे। ये क्लास में बस आपको एक मोटा मोटी बात बताई जा रही है कि आपको अगर ऐसा लगे कि आपकी प्रकृति के अनुसार आपको कुछ करना है, तो पहले आप अपनी प्रकृति को खोज कर ले आए, फिर थेरेपिस्ट या न्यूट्रिशनिस्ट जिससे भी आपको मिला वो आपको बता देंगे कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। ओके। फिर आता है आ, हमारा एक्सरसाइज। अब योग में जो वात वाले हैं उनको कुछ एक्सरसाइज, कुछ आसन सूट करेंगे, प्राणायाम सूट करेंगे, कुछ नहीं सूट करेगा। अब जैसे एक बात मैं बताता हूँ, ध्यान करने वाले व्यक्ति की बात बताता हूँ। वात वालों का मन बहुत चंचल होता है, तो क्या वात वालों को हम ऐसा ध्यान करा सकते हैं जिसमें प्राणायाम नहीं कराए और सीधे ध्यान में उतार दे? ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको अगर सीधे ध्यान में बिठाओ तो कई तरह के विचार आने लगते हैं, वो ध्यान नहीं कर पाते हैं। वही कफ वालों को बिठाओ तो शायद ध्यान करने की जगह नींद में चले जाए। और पित्त वालों को अगर आपने त्राटक ज्यादा करा दिया तो हो सकता है उनको गुस्सा ज्यादा आने लगे। तो आपकी प्रकृति के अनुसार किसको क्या कराना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये चीजें जब आपको पता होती है तो उसके हिसाब से आप अपने योगिक एक्सरसाइज को डिसाइड करते हो। तो यहां पर आपने ये भी देख लिया कि एक्सरसाइज भी है। चौथा पिलर क्या है? सेल्फ अवेयरनेस। योग का मकसद क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोधक। योग चित्त की वृत्ति का निरोध करता है, मतलब आपके कॉन्शियसनेस में जितना भी फ्लक्चुएशन है ना, जो आपको स्ट्रेस में रखता है, जो उसका रीजन है, उसको शांत कर देता है। आपने कभी गौर किया है कि जब आप बहुत शांत होते हो तभी आपके मन में सबसे हाईयर लेवल ऑफ थिंकिंग, क्रिएटिविटी का जन्म होता है। जब आप शांत नहीं होते हो आप क्रिएटिव नहीं हो पाते, माइंड रेपिटेटिव होता है, यानी पहले से जो सोच रखा वही बार 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 आता रहेगा। ऐसा लगेगा आपका आपके माइंड पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, बस वही हो रहा है जो पहले से चलता आ रहा है। एक तरह से किसी ने रिपीट मोड पर किसी सीरियल को चला दिया है, यहाँ से यहाँ खत्म होता है, फिर यहाँ से दोबारा से शुरू हो जाता है। तो अगर आप, Sir, I want to ask one question. यस यस, Already one lady she asked. एक ने पूछा है मैडम कि अभी अब मैं अभी योगा आपके पास से कर रही हूँ, तो एक पिकुलर सिम्टम्स होते हैं कि वाता वाले को थोड़ा सा ये है, तो ये वाता वाली है, वात का है, ये कफ का है। एक पिकुलर सिम्टम्स दो एक नेचर कैसा रहना चाहिए, कैसे पता लगना मेरे खुद को मैं कौन से इसकी हूँ, ये कैसे समझना चाहिए? बोल तो विच योगाज आई प्रेफर डिपेंडिंग अपॉन योर वाता कफा यू आर टेलिंग ना सर, हाउ कैन वो आई उसके लिए मैंने कहा ना कि उसके लिए आपको प्रॉपर डायग्नोसिस करानी पड़ेगी। उसका डायग्नोसिस का तरीका होता है, जैसे आपके शरीर के कुछ हिस्सों पर वो, एक तो आपका पल्स डायग्नोस करेंगे, फिर पल्स डायग्नोसिस करने का भी 6 तरीका होता है अलग अलग। ठीक है, हाँ 6 अलग अलग तरीका होता है। तो पल्स डायग्नोस, फिर बॉडी के अलग अलग सेंटर पर पल्स है, वहां पर भी वो चेक कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली वो
रेडियल पल्स चेक करते हैं। वो 6 अलग अलग तरीके से बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में पता कर लेते हैं। उनके कंडीशन के हिसाब से आपका डिसाइड हो सकता है कि आपकी प्रकृति क्या है। वो एक है। फिर बाकी कंडीशंस भी वो देखेंगे, जैसे आपका जीभ में किस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो हर तरह के प्रकृति के लोगों के पास एक तरह का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। जैसे वात वालों का जीभ कुछ ज्यादा ही कटा फटा टूटा रहता है ना। तो इसी तरह से जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर के लोग हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के लोग हैं, उनका जीभ थोड़ा अलग होता है, आंखों का शेप थोड़ा अलग होगा, है ना। उनके जो आईलिड्स होंगे, जो आईब्रोज होंगे, इनफैक्ट पूरा फेस का शेप बहुत हद तक डिफरेंस रखता है उसमें। कि जो पित्त वाला है उसके चेहरे पर थोड़ा अलग तरह का तेज रहेगा, जो कफ वाला है उसका चेहरा ज्यादा खूबसूरत होता है सभी लोगों की तुलना में, और जो वात वाला होता है उसका चेहरा थोड़ा जल्दी सूख जाता है, वो जल्दी मोटा हो जाता है, वो जल्दी पतला हो जाता है ना। पित्त वाला थोड़ा बैलेंस में रहता है, लेकिन उसको फोड़ा फुंसी अल्सर ये सब जल्दी हो जाता है। कफ वाले को कफ बहुत जल्दी हो जाता है, वजन तुरंत बढ़ जाता है, घटता ही नहीं है उनका, है ना। वात वाले का हड्डियों में कड़कड़ाहट ज्यादा सी होती है, उनको गर्मी भी ज्यादा लग रही है, ठंडी भी ज्यादा लग रही है, प्रॉब्लम उनको है, स्किन उनकी तुरंत खराब हो जा रही है। तो जो इस तरह के लोग हैं, अब क्या है कि मैं किसी को बोल भी दूं तो वो सोचेंगे कि मेरी ऐसी प्रकृति है। नहीं, जरूरी नहीं है। उम्र के हिसाब से भी प्रकृति कुछ बढ़ती है, कुछ घटती है। याद रखिएगा कि बुढ़ापे में आपका वात बढ़ जाता है, और जवानी में आपका कफ पित्त रहता है, और बहुत बच्चे रहते हैं तो कफ आपको डोमिनेट करता है। तो पूरे दिन में फिर, या ऋतु के समय, यानी कौन सा समय चल रहा है, जरूरी नहीं कि आपका फंडामेंटल नेचर कफ है तो अभी वर्तमान में आपका कफ ही डोमिनेट कर रहा हो सकता है कुछ और डोमिनेट कर रहा हो। तो इसीलिए आपको डायग्नोसिस कराना चाहिए किसी डॉक्टर से, तो वहां पर आपको सब कुछ पता चलता है। तो जब आप योगा के प्रिंसिपल्स को सीखते हैं, ये क्या है कि योगिक लाइफस्टाइल हम आपको अभी सिखा रहे हैं कि उसका क्या बेसिकली वो आपको देता क्या है। ये कोई और भी मेरे साथ होस्ट कर रहा है क्या? हम्म। तो जब आप अपनी प्रकृति को जानोगे ना, तो उस हिसाब से आप अपने डाइट को भी बना पाओगे, आप अपने एक्सरसाइजेस को भी बना पाओगे। याद रखना, जो प्रकृति आपकी है उसी के हिसाब से आपको डाइट लेना चाहिए। फिर मान के चलो, अगर एक ऐसा इंसान, सपोज देयर इज समबडी हु नोज दीज 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ, then don't you think that his life, his holistic health, his overall performance will increase? Don't you think that his overall well-being will increase? And Yes, what sir. is the purpose of yoga? The purpose of yoga is to attain Brahm. Or yoga means what? The integration, absolute integration of God and soul. Jivatma and Paramatma. Mind, soul, and body. 3 are aligned in Yes. one line. When Chitta Vritti Nirodha occurs, when the cessation of all fluctuations in the consciousness occurs, this leads to integration of mind, soul, and body. And when this happens, this leads to the stage of yoga or samadhi. Okay? One definition of samadhi is that yog hi samadhi hai. Yog itself is samadhi. And Patanjali, when he mentions yoga, what he's actually trying to say is also the same, that yoga is the situation where fluctuation of consciousness is eliminated. So when fluctuation of consciousness is eliminated, what happens? You remember, in concentration, when you are trying to concentrate, your mind is still trying to put some effort. But when you are meditating, your mind is not putting any effort.
it is effortless. But at the final stage, there is nothing left. Neither the person who is trying to focus, nor the thing that has to be focused upon, nor the process of focusing. All these three things merge into one. And there is no sense of three, neither sense of one. Why? Brahm is not called that it is one. No. Brahm is non-dual. Advait. How many of you think that God is one? Yeah, but yoga Yes, says no, Advait. It means it is not two. But how could you say that it is one? Because in order to be one, there has to be two. If there is only one, then how do you know that it's one? Okay, for example, I'm giving you an example. I'm asking you a question first. Suppose there was nothing in this universe and something came out. Okay? There was nothing in this universe and something came out. How many things are there? One. Yes. And what about the space surrounding that thing? And what about that nothing from where this something has appeared? Yeah. It means Exactly. it means God is non-dual. Why? It cannot be one. That's why Adi Shankaracharya said Advait. So in yoga, though there are various schools of philosophies, but basically the philosophy of Patanjali is followed. Now, here what we are trying to achieve, here we are trying to achieve a holistic lifestyle, holistic health, and holistic well-being through yoga. So when you are practicing yoga, you consider these four pillars according to the yogic principles. And yogic principles are aligned with Ayurvedic principles. And Ayurvedic principles are aligned with Vedic principles. Ayurveda is also called the fifth Veda. So when yes. sir. So these four pillars you told, right? So Mhm. nutrition, self-awareness, and rest two are. Adequate rest and self-awareness, nutrition, and exercise. Right exercise. Right exercise and right amount of exercise. Okay. Thank you, sir. Now let me ask you some questions related to your, because I am giving you a fundamental, a just a nutshell of everything. I won't tell you that this amount of vitamins and minerals and nutrients exist. I won't tell you that this is how it works upon the cell. I won't tell you that this and this exercise you have to do. Why? Because it will take years to understand this. Either you learn it by yourself or meet an expert and then follow his recommendations. What I'm here to tell you is just to give you a roadmap of what you have to do in case you feel helpless regarding any of these issues. Because a lot of us must have understood this issue that only when we feel helpless, we are in pain. The more we come out of this helplessness, the more we feel empowered. Yes. Even the most richest person can feel helpless.
And even a person living a very decent standard of living, not so much high standard of living, can feel totally empowered. Why? Because he or she has trained himself with these required skills of life. So, yoga in itself is a holistic art of living. And when you know yoga, when you know what you have to eat, when you know how you can treat your illnesses or at least balance it, when you know what is the principle of living, what is the art of living according to yoga combined with Ayurvedic principles, don't you think that your life will become much better than what it is right now? So I am asking, for example, from the first pillar, uh, what do you think that if you are not eating well, you must have noticed that when you didn't eat well, your performance decreased. So any personal experience that you can share, anybody who actually felt it very deeply, that just because of nutrition, what you was able to achieve as a learner or as a person, you didn't achieve the time when you had to, or it actually delayed the process. Anybody? So I didn't get you. I said that I'm talking in terms of nutrition. What do you think is the impact of nutrition in anybody's overall productivity and performance? Any any life scenario where you felt that just because of lack of information of nutrition, you didn't achieve things that you might have achieved? Yes, sir. I have experienced it when I don't know what is to be taken. I have searched for many weight loss things and all, workouts and things and all. I have searched, and Mm. when I connected with many people, different peoples will work on different things, and nothing got worked out to me. At last, I got into a community, so where they taught me how to take the foods properly. Before and all, I used to get very sick. Often, I used to go to hospitals, injections, trips. This was my lifestyle. Not a lifestyle, this was my habits all over. And when I shifted to a proper lifestyle and I understood what is most important in diet, that I carried out as a lifestyle now. Still now I'm following. Now for the past 1.5 years, I'm not going to any hospitals, or no, I'm not taking any medicines. I'm feeling very healthy actually. But mindset part I have to improve a lot in many things, because everyone will face many things in families and in part of money and everything. So that shift I Mhm. have to make definitely. So these things I Mhm. observed myself. Mhm. Yes, sir. Mhm. That's it. Mhm. Okay. Uh, okay, then let me ask you another question because very few people know about it. What is the role of diet and nutrition if somebody is wanting to replace it with medicine, dependence on medicine? No, if we take up the nutrition in right things, medicines are not at all required. But if it has become very hectic, that is, they are into their critical stage, definitely medicines they have to take up. But in the initial period itself, if we are able to understand things, we can definitely come out of medicines. And how can Sir, we gradually withdraw from dependence on medicine if we have started nutrition according to the recommendation of a nutritionist? It takes some time, definitely. No, so it is not like a 4 months period. It depends on each one's body, right? So it depends on how they are taking it up, and the time period varies from person to person. Yes, yes, yes. So, see, what Faizun Isaji said, because I think you're a nutritionist yourself. Yes. So what she said is depends upon the person.
I would say depends upon the constitutional type. Why? Because I am from this field. A person of Kapha constitution, he or she will recover faster. Vat, they will recover slow. Pith, in moderation. So, why nutrition is important? It actually can help you come out of all the problems you're facing if taken in the right amount at the right time. Even when you are in a critical situation and you are on medication, with time you can withdraw yourself from medication if you are taking the right nutrition. This is the power of nutrition. Yes, why not? देखिए, न्यूट्रिशन का क्या फायदा है? अभी आपने सुना फैजुनिशा जी को कि अगर आप बीमार हो, कई बार दवाई की जरूरत भी नहीं पड़ती है अगर क्रिटिकल स्टेज नहीं है तो आप सिर्फ न्यूट्रिशन से उन चीजों को ठीक कर सकते हो। कई लोगों को स्ट्रेस, एंजाइटी, हार्ट इशू, बीपी इशू, ये सब का होता है इशू। आप सिर्फ अगर न्यूट्रिशन लेते हो ना, सेल्यूलर लेवल पर असर होता है, क्योंकि हमारे सेल्स तो उसी से बन रहे हैं ना, हम जो खा रहे हैं। अब उसको कितना पकाना है, कैसे खाना है, कब किसको खाना है, कितने देर में खा लेना है, ये सब पता होना चाहिए। तो जब आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करते हो या किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया, दो आई बिलीव दैट न्यूट्रिशनिस्ट आर मोर एक्सपर्ट देन डॉक्टर्स। Why? Because doctors will give you a very general guideline, and most of us ask this from a doctor that I don't personally recommend. Ask it from a nutritionist, that would be best. तो जब आप किसी न्यूट्रिशन को सही से फॉलो करोगे ना, आप देखोगे कि आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स, इवन आपको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है तो आप न्यूट्रिशन से ही वेट लॉस भी कर सकते हो, आपको बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है। आप न्यूट्रिशन से ही अपने स्ट्रेस को भी कम कर सकते हो। आप न्यूट्रिशन से ही अपने चेहरे को, आपको कॉस्मेटिक्स का सामान बहुत यूज नहीं करना पड़ेगा, आपका चेहरा वैसे भी ग्लोरियस हो सकता है। आप न्यूट्रिशन से ही आपका जो रेस्ट का क्वालिटी है उसको भी इंप्रूव कर सकते हो। यानी यहाँ पर चीजें इंटरलिंक्ड है। आपको पता है, अगर आपका न्यूट्रिशन सही है तो आपके बॉडी में जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, जो आपके हॉर्मोन्स है, वो बिल्कुल बैलेंस में रिलीज होंगे, है ना, आपका कॉम्पोजिशन बैलेंस्ड होगा। अगर आपके हॉर्मोन्स जो रिस्पॉन्सिबल है आपके मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छे से काम कर रहे हैं, तो एज अ ह्यूमन बीइंग आप जल्दी इवॉल्व करोगे। क्योंकि जब हमारा मन शांत होता है, जब हम हेल्दी होते हैं, तो हमें ना किसी काउंसलर की जरूरत पड़ती है अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, और ना बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत पड़ती है हमें। हम सिर्फ और सिर्फ अगर एक हेल्दी न्यूट्रिशन के प्लान को फॉलो करें, तो बस थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करके, अच्छा रेस्ट लेकर, और जो पूरे दिन में हम ग्रहण करते हैं या जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं, अगर उसको हम अपने सेल्फ अवेयरनेस में बढ़ाने में काम ले ले, तो सिर्फ न्यूट्रिशन की मदद से आपका इतना सब कुछ हल हो सकता है। तो अगर आप, ये क्या हो रहा है, तो अगर आप इस तरह से न्यूट्रिशन के ऊपर काम करते हैं, खास करके योगिक न्यूट्रिशन को अलग से एक उसका चैप्टर है जो इसी में पढ़ाया जाएगा। बेसिकली योगिक न्यूट्रिशन में कहा जाता है सात्विक डाइट लेने के लिए। आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन में क्या है कि अपने प्रकृति के हिसाब से डाइट लेंगे। तो योगिक और आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन साथ में चलता है। जब आप सात्विक डाइट लेते हैं तो आपका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हर तरह का हेल्थ अच्छा रहता है। इससे आपको बीमारियां कम होती हैं, और जो आपका इंटीग्रेशन है अल्टीमेट रियलिटी के साथ, वो जल्दी होता है। यानी योग का जो मकसद है समाधि तक पहुंचना, वो आप जल्दी पहुंच पाते हो। इसलिए आप देखते हो साधुओं को बिल्कुल सादा खाना खाते हैं वो लोग। वो सादा इसलिए नहीं खाते हैं कि उनको मतलब इन सभी चीजों से कोई बहुत ज्यादा बल मिल जाता है। वो सादा इसलिए खाते हैं कि सादा खाना सात्विक होता है। वो सादा इसलिए भी खाते हैं क्योंकि ब्रह्मचर्य उसी से पालन हो पाता है।
अगर कोई ये सोचता है कि वो अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर पाएगा बिना आहार को नियंत्रित किए, तो ऐसा नहीं हो सकता। याद रखिएगा, ये जो हमारा टंग है ना, ये हमारे ब्रह्मचर्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर टंग को हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम किसी सेंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, और अगर सेंस के कंट्रोल को हम खो बैठते हैं तो हमारा माइंड तो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रहेगा, और ऐसी स्थिति में हमको स्ट्रेस भी होगी, एंग्जाइटी भी होगी, फोकस जीरो हो जाएगा, और ऐसा आदमी समाधि तक तो कभी नहीं पहुंच सकता। तो दैट्स व्हाई न्यूट्रिशन इज सो इम्पोर्टेंट। मैंने क्यों ये सात्विकता को ऐड किया, क्यों जीव के बारे में बताया, क्यों इंद्रिय निग्रह के बारे में बताया? क्योंकि योग के लिए न्यूट्रिशन सिर्फ बॉडीली लेवल तक नहीं है, ना ही मेंटल लेवल तक है। योग के लिए न्यूट्रिशन आपको गॉड के साथ इंटीग्रेट होना, यानी अल्टीमेट रियलिटी के साथ मर्ज हो जाना, जो डाइट आपको इसमें मदद करता है वो योगिक डाइट है। इसलिए इस चीज को यहां पर इस्तेमाल किया गया, इसका कंटेक्स्ट यहां पर ये है। अब दूसरी चीज पर हम आते हैं, रेस्ट पर। कोई ऐसा है जो रेस्ट पर कुछ कहना चाहेगा, जो उसके पर्सनल लाइफ को इम्पैक्ट किया हो? somebody who really want to talk about rest, importance of rest? Anyone? सर हाँ जी। तो मेरा नाम प्रीति घोष है। हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ, बोलिए। हाँ, वो रेस्ट के बारे में मुझे बोलना था। हाँ हाँ। हाँ, ये रेस्ट के वजह जैसे कि मेरा छोटा बेबी है, तो उस टाइम पे सोता नहीं है, उसके लिए भी जागना वगैरह पड़ता है। तो इसीलिए मैं रेस्ट की वजह से मेरे हेल्थ इशू भी है बहुत सारे, और वेट लॉस भी हो गया है। ये सोचती भी रेस्ट तो जरूरी है सबके लिए, जैसे 8 आवर ऑफ स्लीप इज नीडेड फॉर एवरीबडी, जो कि हम लोग नहीं कर सकते थे। 4 to 5 या हार्डली 6 आवर्स से सो पाती कभी कभी, तो उसमें भी ब्रेक होता है, जैसे वॉशरूम जाना हुआ या बच्चे ने जगा दिया, तो इसलिए रेस्ट प्रॉपरली नहीं लेने के कारण भी मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यू हुए हैं। और क्योंकि वो छोटा है बोल के मैं अभी भी टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, इसीलिए हेल्थ इश्यू है, और वेट गेन भी नहीं कर पा रही हूँ। ये सारे प्रॉब्लम मुझे फेस करने पड़े हैं, तो इसलिए मुझे रेस्ट के बारे में मैं ज्यादा मैंने समझ सकती हूँ, वही बोलना चाह रही थी। चलिए, आपको सलाम है, क्योंकि बहुत मतलब अगर इस दुनिया में माँ ना हो तो प्रजाति ही खत्म हो जाएगी इंसान की। तो इसके लिए मैं आपको काफी दाद देता हूँ, और अच्छा लगा ये सुनकर कि देखिए, अब यहाँ पर तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको लोग हेल्प करने के लिए हैं आसपास, तो अपने रेस्ट के क्वांटिटी को बढ़ाए। लेकिन क्या होता है ना, माओ में एक एक अलग सी बेचैनी होती है कि मेरे बच्चे को मेरे से ज्यादा ध्यान से कोई नहीं रख सकता, क्योंकि वो मेरा बच्चा है ना? हाँ, वो तो बात तो सही है। हाँ, सही कहा तो आपने। आपने मैंने मैं किसी किसी हेल्पर को भी भी अगर ये हायर कर लिया तो कंसेप्ट भी उस बोल पर के, भरोसा नहीं करोगे आप। हाँ, और क्योंकि कोई प्रॉपरली कर भी नहीं पाता, ये भी मैंने देखा है। मतलब जितना सेक्रीफाइस एक मदर कर सकती है, वो कोई और नहीं कर सकते, वो चाहे उसके दादी हो या कोई भी हो। पापा भी नहीं, क्योंकि पापा तो जानते कि मुझे जो काम है मैं अपना कर रहा हूँ, बाकी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर कभी दे दिया जाए तो फिर गुस्सा भी आता है उन लोगों को कि हाँ, वो तो तुम्हारा काम है, तुम ही करो। पर वही रेस्ट के बारे में यही कि अगर लोग घर में कम हो, तो रेस्ट भी नहीं मिल पाता। जब तक बच्चा खुद से मतलब नहीं कर पाता है, जब तक तब तक तो मतलब मदर को देखना ही पड़ता है। ऐसे में भी तो मदर देखेगी, फिर भी मैंने जो नॉर्मल जो चीजें हैं वो तो नहीं करने से भी नहीं होगा, इसीलिए। सर बहुत बहुत अच्छा लगा प्रीति जी आपसे बात करके। आपका जो ये मैटर है ना, इसको हम सेल्फ अवेयरनेस से भी ऐड करेंगे, अभी उसको इंटीग्रेट सर करेंगे, सेल्फ मैं अवेयरनेस। कुछ हाँ जी, बोलना बोलिए। चाहूंगी। हाँ हाँ, एक्चुअली बोलिए। मेरा नाम रश्मि मिथानी है, हाँ हाँ। और मेरा मतलब छोटा बेबी, एक लड़की है वो 7 साल की है, अभी सेकंड बेबी जो 10 मंथ्स की है। मेरा हाँ हाँ। वेट था 70 किलो था, और वो होने के बाद 10 मंथ में अभी सीधा 40 kg पे आ गया, जो सिर्फ स्लीपिंग साइकिल की वजह से हुआ है ये सब। मतलब 70 kg से सीधा 40 पे, और नींद का तो अभी जैसे इन मैडम ने बोला है, नींद तो होती ही नहीं है, मतलब नहीं के बराबर पकड़ हम्म लो।
जो हम्म सुबह से वो उठ जाती है 8 बजे से, अभी दोपहर में सोती है आधा घंटा, तो बस अभी तक के वो जाग ही रही है, नींद तो मिलती नहीं उसमें, मेरे को माइग्रेन अलग से आ गया। हम्म नींद की वजह से माइग्रेन। आपने जो बोला ना कि नींद में अगर हम रहते भी है तो दिमाग में अलग अलग से सारे मतलब कुछ कुछ चलते रहता है। तो मतलब बहुत सारी इश्यूज मेरे भी बॉडी में बेबी होने के बाद जो नींद नहीं होती उसके वजह से आ ही गए। माइग्रेन तो बहुत ज्यादा हाइपर लेवल पे चले गया है, और वेट इतना लॉस हो गया है कि सब लोग बोल रहे हैं कि मतलब जो पहले वाला था और अभी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, इतना मतलब वीकनेस हो गया है शरीर में, अंडर नहीं, आपने स्लीपिंग साइकिल की वजह से। आपने जो बताया है, क्योंकि मैंने खुद ही अपने घर में, मेरी बड़ी बहनें हैं, उनको बच्चे हुए हैं अभी। 3 साल का बच्चा है तब भी इतना जगाता है। तो आप लोगों का तो छोटा छोटा बच्चा है। हाँ, अभी आ, वो 9 महीने की कंप्लीट हुई है। बस आप देखते ही होंगे वीडियो कॉलिंग में जब क्लासेस स्टार्ट रहती हो, बीच बीच में घर पे सब है बट संभालना किसी को भी नहीं है, सिर्फ मम्मा ही करेंगे जो करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मैं समझ सकता हूँ। और इसका मतलब आप दोनों ने जो मुद्दा उठाया, ये तो हमने रेस्ट से उठाया है, लेकिन रेस्ट का असर आप देखो कि आपके फिजिकल हेल्थ, आपके मेंटल इमोशनल हेल्थ, आपके वेट लॉस पर कितना कितना असर पड़ता है ना। है ना तो सर, आप सीधा लोग पर्सनल 75 kg से मैं सीधा 40 पे आ गई हूँ। मेरे को तो इतना शॉक लगता है, और माइग्रेन तो इतना टू मच लेवल पे चले गया कि आई कांट एक्सप्लेन। देन यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर एटलीस्ट। आप क्या डॉक्टर के कंसल्टेशन में? मैं खुद एक थेरेपिस्ट हूँ। मेरा एक्यूपंक्चर का हॉस्पिटल है, क्लिनिक भी है। पेशेंट के साथ साथ क्लिनिक चला के बच्चे को संभालना सर बहुत हेडेक हो जाता है, और फैमिली में किसी का सपोर्ट ना हो तो हाँ, लेकिन ये बात तो सच है, इसीलिए इसी पर मैं, जब किसी ने सोशल कनेक्शन बोला था तो मैंने उसमें पॉजिटिव सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ अवेयरनेस बोला था। तो मैं वहां पर यस। कनेक्ट करूंगा कि क्यों ये जरूरी है। थैंक यू वेरी मच रश्मि जी। थैंक अ, यू सर। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं, वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एक्सरसाइज। मुझे ये बताइए, किसी का पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जहां पर उनको पता चला हो कि एक्सरसाइज करने से पहले और करने के बाद, नहीं करने पर और करने पर क्या फर्क पड़ा, पर्सनली जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा हो, जैसे रेस्ट ना करने के कारण जो प्रीति जी ने बताया और रश्मि जी ने बताया, ये हमारे पर्सनल लाइफ से कनेक्ट होता है। तो ऐसा कोई इनका पर्सनल इम्पैक्ट पड़ा हो लाइफ में, वो अपना शेयर करें। Yes, sir. हेलो सर, आई एम लिखिता। यस निखिल जी। सर, मेरा बेबी अभी 1.5 साल का है, लेकिन जब मेरी हम्म डिलीवरी हुई थी तब हम्म मेरा वेट जो था 68 क्रॉस कर गया था, लेकिन अभी हम्म जो है वो 45 कांस्टेंट है। हम्म और ये सब एक्सरसाइज की वजह से ही हुआ है, हम्म और डाइट। डाइट एंड एक्सरसाइज। तो यस यस। आपने गौर किया कि जब आप एक्सरसाइज नहीं करते थे और जब आप एक्सरसाइज करते थे तो उसका, यस यस, वी विल श्योर। एक्चुअली सुंदर जी, वी आर आस्किंग क्वेश्चन टू एवरीबडी, and those who want to share their experience in English, they can share their experience in English as well. That's why we are asking these questions, so that we can feel personally the pain, the struggles of everybody who is here. On a Yeah, got personal it. level, when we connect, we learn more. Yeah, correct, correct. And also, do you have any nutrition group, Ji? So that they What? can also any nutritionist in this group? Yeah, we have Any, Fazunisa ji. okay, so that now she can also give us some tips, about the diet in general, not as I mean for any particular this kind of things in general, what to eat, what not to eat, and how much to eat, and kind of things. Is she ready The to give better, us the something? better I mean, that you are. I mean, if you give enough time to something and attention, the better results you achieve. So just a general thing, getting a general thing and getting something specialized, there's a difference. So specialized things are better. General things Okay. might not be beneficial. Even sometimes they might be harmful for your health. So better that you go through a proper procedure. Okay, because the people I'm asking people who doesn't have any kind of disorders or disease, something like that, like BP, sugar.
I mean, people like me, like we who don't have any kind of this sort of kind of thing. So, what to Sundarji, follow so that we can all avoid of in us, the future. Sundarji, all of us are born with certain imbalances. And Yeah. when we know that what kind of imbalances we have, then only we can balance it. And those who don't have a proper nutrition planning, if you check yourself, when you are tested, you will realize that a lot of things in your body is in lesser quantity than what is required. Sir, So a it is lot of also us, depend upon the age also. yeah, it depends Age. upon the age also. A lot of Yeah. things matters. That's why I said that in elderly ages, vata dominates us. So actually, the nutrition helps us better, I mean, more rapidly in younger ages. But when we become older, it takes more time. Recovery is late. Yes. Okay. And So, आई वांट टू गिव वन एग्जांपल सर कि मैं कोरोना पीरियड में मेरा इतना वेट बढ़ गया था तो मेरा लेफ्ट साइड सीआईटी का स्टार्ट हुआ सर उसी टाइम इतना सीवियर पेन था चलते वक्त मुझे पैर ऐसे हाथ में पकड़ना पड़ता था लेफ्ट साइड इतनी सी वो पूरी नस खींचती थी तो मैंने फिर एक्सरसाइज से उसको कवर कर लिया सर तो सीआईटी का इतने मैं बोल तो वो पेन की वजह से ना मैं सर्च आउट करके कौन से एक्सरसाइज करने हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज की मैंने किया है सर और इतने अच्छे रिजल्ट आए सर अभी तक मुझे वो पेन नहीं है तो आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग हैं, आप देखिए एक्सरसाइज का इम्पैक्ट कितना ज्यादा होता है, हाँ क्योंकि उस डाइट भी केस में, कंपलसरी है सर उसके साथ हाँ, डाइट डाइट तो भी कंपलसरी है। ये कंपलसरी क्योंकि हमने न्यूट्रिशन के एस्पेक्ट को कवर कर लिया, हमने रेस्ट के एस्पेक्ट को कवर कर लिया, पर हमने डाइट के एस्पेक्ट को अभी हमने एक्सरसाइज के एस्पेक्ट को कवर नहीं किया था। एक्सरसाइज का एस्पेक्ट जैसे ही हमने कवर किया, अब इस बात को समझिए, एक्सरसाइज करने के बाद आपको रिकवर भी तो करना है ना, तो उसके लिए प्रॉपर रेस्ट भी चाहिए। और रेस्ट कर लिया तो भाई आपकी बॉडी रिकवर किस बेसिस पर होगी? अगर शरीर में खाना ही नहीं है, मतलब सही न्यूट्रिशन नहीं है, तो आप जिम से आ गए और आपने रेस्ट कर लिया तो क्या हुआ? मसल टूटे, लेकिन बनने के लिए फिर वापस से प्रोटीन किधर है शरीर में? है ना? कार्ब्स किधर है? फाइबर्स किधर है? तो इसीलिए जब आप when you know what you have to do with your body, your mind, your soul, then only you are actually a yogi. Then only you can live a holistic life. Yoga gives you the extreme of health. Understand this point. योगा करने वाला व्यक्ति हेल्थ की एकदम सीमा पर पहुंच जाता है, और जो हेल्थ की एकदम उच्चतम सीमा पर पहुंचा है ना, वही सत्य को भी पा सकता है। क्योंकि जिसने सत्य को पाया है ना, वो बहुत शरीर से मजबूत है। तपस्या करनी पड़ती है ना, और तपस्या कौन कर पाएगा? कमजोर शरीर वाला तो नहीं कर पाएगा, मजबूत शरीर वाला ही करेगा, मजबूत मन वाला ही करेगा। बाबू कहाँ और सर घुटनों का दर्द भी स्टार्ट हुआ था अभी आपका ये क्लास ज्वाइन होने के 1 महीने पहले ही मैंने स्टार्ट किया योगा घुटनों के लिए हाँ फिर अभी मैं बैठ पा रही हूँ मैं ऐसे बैठ नहीं पाती थी तो ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, ये लोगों को सिखाता है यहाँ पर कि एक्सरसाइज होने से जो हेल्पलेसनेस आपको फील हो पाती, वो नहीं हुई। आपको पता चल गया। अभी क्या, दोबारा अगर कभी दोबारा से दर्द होगा, मान के चलो किसी कारण से आपने योगा छोड़ दिया, तो फिर आप दोबारा से इस चीज को करोगे तो आपको ये तो पता रहेगा ना कि चलो ठीक है, प्रॉब्लम हुई तो ही, लेकिन मेरे पास सॉल्यूशन है। जब सॉल्यूशन नहीं होता तब आपने देखा कितना स्ट्रेस होता है। सर फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी। अब हम फाइनल पॉइंट पर मेरे पहुंचते हैं। साथ भी हुआ सेम थिंग हाँ, हैपेंड विद मी लाइक फ्रॉम 8 years सर्वाइकल की प्रॉब्लम है ही मुझे बट वेनेवर जब बहुत ज्यादा होता है तो आई यूज टू गो फिजियो एंड योगा और अब योगा इतना अच्छा लग गया कि योगा करते मुझे कुछ भी पेन नहीं होता वो यही बोलता है कि आप में न्यूट्रिशन की ही कमी है मुझे भूख नहीं लगती है तो मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन पी इवन लाइक मुझे
कि लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया तो मैं ये भूख लगे और मैं खाना खाऊं। तो ये न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज दोनों चीज मैंने देखी कि मेरे साथ हुई है। मेरे न्यूट्रिशन की भी कमी की वजह से आई यूज टू टेक लाइक मेडिसिन पीती थी तो मुझे भूख लगती थी तो हाँ ठीक है 2 रोटी खा ली, भूख लग रही है कुछ फ्रूट खा लिया, और साथ में एक्सरसाइज। मतलब इतना टाइम हो गया कि सर्वाइकल इतना इस स्टेज पर है कि अभी तक जा ही नहीं रहा, तो अब ऐसे कि नहीं अब मुझे बस कैसे भी करके निकलना ही है बाहर, लाइक ऐसा हो गया। तो इससे तो पता आप चला इतनी मेडिसिन ले लेके मैग्नीशियम D3 कैल्शियम मतलब बहुत। नहीं सर, ये जो नहीं सप्लीमेंट देते हैं ना सर, हम्म ये सप्लीमेंट इज नॉट अ गुड वे। कैसा है, तुम खाना खाने वो डाइजेस्ट करने के लिए खाना भी मस्त है। ओनली देखिए इस पर सप्लीमेंट सब आर नॉट। जयश्री जी, इस पर सबका अलग अलग मत है। एक न्यूट्रिशनिस्ट की नजर से देखिएगा तो सप्लीमेंट इसलिए बेटर है क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है अभी। यस। तो नहीं नहीं कम सर, टाइम में वो वो कैसे जल्दी सिर्फ रिकवर कर सकता खाना है। तुम प्रॉपर नहीं खा रहे हो और सप्लीमेंट ले रहे हो, तो सप्लीमेंट भी काम नहीं करते सर। तो एक खाना भी प्रॉपर होके वो सप्लीमेंट लिए तो उसमें प्रोग्रेस आता है। दैट इज अ बेटर वे। पर मैं ये कह रहा हूँ कि मान के चलिए किसी के पास वो सेटअप नहीं है, नहीं उतना है, हाँ। नॉलेज नहीं है, तो उस केस में जैसे मान के चलिए अब बैचलर कोई रह रहा है, हम्म, यस यस। और घर पर जो कुक आ रही है उसको ये पता नहीं है कि आयुर्वेदिक चीजें कैसे बनाती हैं या फिर डाइट के लिए कितना पकाना है, कैसे पकाना है ना। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा फास्ट ट्रैक हो जाए वो चीज, थोड़ा एफर्टलेस हो जाए, तो वहां पर सप्लीमेंट सजेस्ट करते हैं। लेकिन ये बात सही है कि न्यूट्रिशन जब आप सही लेते हैं सप्लीमेंट हटाकर, तो वो ज्यादा स्टेबल और लॉन्ग टर्म होता है। बहुत अच्छा तो रिजल्ट आता है। दैट आई टोटली अग्री विथ यू। अब लास्ट में हम आते हैं सेल्फ अवेयरनेस। सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मेरा थोड़ा सा एक लिटिल एक्सपीरियंस है, मैं भी शेयर करना चाहती हूँ। यस। सर एक्चुअली मैम ने बहुत सारे मैम ने अभी लाइक योगा के बारे में सप्लीमेंट्स एंड ऑल सब के बारे में बताया। सो लाइक 1 year बैक मैं बेसिकली आई एम एन एडवोकेट राइट नाउ। पहले 1 साल पहले मैं लॉ स्टूडेंट थी, तो मेरा लाइफ बहुत ही हेक्टिक था। कॉलेज रहता था, इंटर्नशिप रहता था। तो मेरे जो फ्रेंड्स थे हम सब ने लाइक लाइक दे वर आल्सो जॉइनिंग जिम। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो पीयर प्रेशर में आके सब मिलके जिम ज्वाइन कर लिया। नाउ व्हाट हैपेंड कि आई जॉइन जिम एंड वी ऑल स्टार्टेड लाइक हम लोग साथ में वर्कआउट करते थे सब मिलकर। तो आई वाज डूइंग वेट लिफ्टिंग एंड ऑल। What happened कि आफ्टर लाइक 2-3 months, नॉट इवन लाइक 3 months, 3 months के आसपास ही मेरा लिटरल लाइक जो बैक का जो एकदम जॉइंट होता है, जो पूरा एकदम वर्टिब्रा का जॉइंट होता है, इतना पेन होने लगा वहां से एंड घुटने तक। आई वॉज लाइक कि मैं सो नहीं पाती थी रात को, भयंकर लेवल का पेन होने लगा था। एंड दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि हम लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज इज गुड एंड ऑल, बट वही आपने जो बताया स्टार्टिंग में कि हर बॉडी टाइप के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें अलॉटेड होता है। देन आई रियलाइज दैट जिम इज नॉट सूटिंग मी, स्पेसिफिकली वेट लिफ्टिंग इज नॉट सूटिंग मी। तो मुझे शायद वो छोड़ना पड़ेगा एंड आई लेफ्ट इट। एंड उसके बाद मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके योगा करना स्टार्ट किया, मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। आई एम वे बेटर नाउ। उस टाइम मैं भी ऐसे लाइक प्रोटीन का डब्बा वब्बा ये सब लेती थी, मैंने अभी बंद कर दी हूँ। मैं अभी सिर्फ आंवला पीती हूँ, आंवला और नींबू का पानी पीती हूँ सुबह, दैट्स इट। तो आई थिंक दीज थिंग्स हैज चेंज मी अ लॉट कि मेरा बॉडी टाइप के अनुसार मुझे जो लगता है कि नहीं मुझे सूट कर ही नहीं रहा है जिम एकदम से, वेट लिफ्टिंग एंड ऑल, इट्स नॉट सूटिंग माई टाइप। इनफैक्ट आई यूज टू रन अ लॉट इन ट्रेडमिल्स एंड ऑल दैट, बट वो भी मुझे एकदम सूट नहीं कर रहा था। उससे बेहतर मुझे लगा कि अगर मैं बैठकर इधर थोड़ा लाइक मेडिटेशन करूं या फिर बस उठक बैठक करूं, जो लाइक दंडासन कहते हैं, या फिर सूर्य नमस्कार करूं, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है मेरे लिए। तो आई थिंक ये वो जो मेरा, आई एम 25 राइट नाउ, मेरा इस एज में भयंकर लेवल का बैक पेन हो रहा था। आई यूज टू क्राई एट नाइट कि मुझे नींद नहीं आ रहा है, इतना पेन होता था। नाउ आई एम मच मच बेटर। थैंक यू। तो Riya ji, thank you very much for sharing your experience. Just give me a second. I'm ending the recording of this session.